ہم اس وقت تاریخی شہر پاک پتن میں کھڑے ہیں، جس کا پرانا نام تھا اجودھن، اور جو کہ دریا ستلج کے کنارے آباد ہے، اس زمانے سے جب دریا ستلج میں بھرپور پانی بہتا تھا۔ کہانی ہے کہ ایک دفعہ مغل بادشاہ اکبر اعظم کا یہاں سے گزرنا ہوا، اور وہ اس جگہ کی آب و ہوا اور رونی فضا سے ایسے متاثر ہوئے کہ انہوں نے اس جگہ کو پاک پتن کہا، اور بعد میں یہ نام اس جگہ کا پڑ گیا۔ لیکن پاک پتن جن بزرگ ہستی سے پہچانے جاتے ہیں وہ ہیں بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ، جن کا مشائخ میں بہت بڑا نام ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء اور حضرت علاء الدین صابر کلیری جیسے کامل شیخ آپ کے مرید اور خلیفہ رہ چکے ہیں۔ ہم اس وقت پاک پتن میں بابا فرید کے در پہ حاضری دینے آئے ہیں۔ اے حسن حقیقی نور ازل تنو واجب تے امکان کو تنو خالق ذات قدیم کو تنو حادث خلق جہان کو تنو مطلق محض وجود کو تنو المیاں آیان کو ارواح نفوس عقول کو اشباح آن نیان۔ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کی سال ولادت کے بارے میں مختلف رائے ملتی ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ متفق ہیں کہ آپ 570 ہجری کے لگ بھگ قصبہ کوتوال موجودہ چاولی مشائخ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والدین نے آپ کا نام مسعود رکھا، آپ کا لقب فرید الدین تھا، اور آپ کے پیغام و کردار و کلام کی مٹھاس کی وجہ سے آپ بابا فرید گنج شکر کے نام سے پہچانے جانے لگے۔ تنو آدم تے ہوا شیس کہوں تنو نوح کہوں طوفان کہوں تنو ابراہیم خلیل کہوں تنو موسیٰ بن عمران کہوں تنو ہر دل دا دلدار کہوں تنو احمد عالی شان کہوں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ چشتی سلسلے میں نہیں بلکہ دیگر سلاسل میں بھی دین کے ریفرنس سے لقب جو ہے وہ عطا ہوا کرتے تھے۔ تو ان کو جو فرید کا لفظ ان کے نام کا جو حصہ بنا، تو فرید بیسیکلی فرد سے نکلا ہے، انفرادیت سے نکلا ہے، یونیکنیس، انڈیویجویلٹی سے نکلا ہے۔ تو فرید الدین جو ہے تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کسی کا نام نہیں ہوا، یہ پہلے ہمیں شخص ملتے ہیں جن کا یہ نام جو ہے رکھا گیا، یہ لقب عطا ہوا۔ تو بابا صاحب کی ایک یونیکنیس ہے۔ ویسے تو بابا صاحب جو ہیں وہ اسپرچویلٹی کا ایک بحر بے کراں ہیں، لیکن اس میں ان کی جو انڈیویجویلٹی، جو ان کی یونیک پوزیشن ہے، وہ کسی اور صوفی نے ساؤتھ ایشیا میں انجوائے نہیں کی۔ وہ ان کا جو اسپرچول سٹیٹس ہے، اسپرچول جو ایمیننس ہے، اس وجہ سے ان کو جو ہے وہ فرید الدین کا لقب عطا ہوا۔ دوسرا جو ان کو لقب عطا ہوا وہ گنج شکر کا ہے۔ اس کے بارے میں ہمیں کئی روایات ملتی ہیں، کئی واقعات ہمیں تذکروں میں ملتے ہیں۔ ایک واقعہ میں آپ کی گزارش جو ہے وہ میں نظر کرتی ہوں کہ بابا صاحب جو ہے بہت مشہور تھے اپنی ریاستوں کی وجہ سے، مجاہدے، چلے، ریاستیں بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ اس میں ان کا جو تھا وہ طے کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے، جس میں جو ہے وہ مسلسل 3 دن تک جو ہے وہ ان کو روزہ رکھنے کا کہا گیا تھا۔ تو اس روزے کی وجہ سے بہت نقاہت محسوس کرتے تھے، تو بعض دفعہ انہوں نے جو ہے اپنے بھوک کی وجہ سے اپنے منہ میں کچھ کنکر جو ہے وہ ڈال لی ہے، مٹی جو ہے وہ ڈال لی، تو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے افطار کا ہی وقت تھا اور وہ جو ہے شکر بن گئی، تو اس وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ گنج شکر جو ہے پڑ گیا۔ تنو آدم تے ہوا شیس کہوں تنو نوح کہوں طوفان کہوں تنو ابراہیم خلیل کہوں تنو موسیٰ بن عمران کہوں تنو ہر دل دا دلدار کہوں تنو احمد عالی شان۔ آپ نے ابتدائی تعلیم کوتوال میں استاد گرامی سید نذیر احمد سے حاصل کی۔ آپ نے بچپن میں والدہ کے ساتھ حج کی سعادت حاصل کر لی۔ 11 سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ کر لیا تھا۔ مزید تعلیم کے لیے آپ کی والدہ نے آپ کو ملتان شہر بھیجا، جہاں پہ آپ نے دینی تعلیمات دل لگا کے حاصل کی، اور 18 سال کی عمر میں آپ کی ذہانت اور علم
की शोहरत हर तरफ फैलनी शुरू हो चुकी थी। तन शाहिद मल्क हिजाज कहूँ, तन बाइस कौन मकान कहूँ, तन नाज कहूँ अंदाज कहूँ, तन हूर परी गिलमान कहूँ, तन नोक कहूँ तन टोक कहूँ, तन सुर्खी बीड़ा पान कहूँ, तन तबला ते तंबूर कहूँ, तन ढोलक सुर ते तान कहूँ, हुस्न तिहार सिंगार को। जिस ज़माने में बाबा साहब मुल्तान में तालीम हासिल कर रहे थे, एक रोज़ हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह मुल्तान आए और उन्होंने एक मकाम पर कुछ दिन क़याम फरमाया। आप नमाज अदा करने के लिए उसी मस्जिद में तशरीफ़ लाया करते थे जिसमें बाबा फ़रीद रहते थे। बाबा फ़रीद की हज़रत कुतुब साहब से मुलाकात का तस्करा तारीख़ में यूं किया गया है कि एक दिन बाबा फ़रीद गंज शकर मस्जिद में बैठे किताब नाफे का मुतालिया कर रहे थे कि हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन वहाँ तशरीफ़ लाए। आपने बाबा फ़रीद को मुताले में मसरूफ़ देखा और पूछा, ये क्या पढ़ रहे हो? बाबा फ़रीद ने किताब से नज़रें उठाकर देखा और जवाब दिया, नाफे पढ़ रहा हूँ। ज्यों ही बाबा फ़रीद की नज़र ख्वाजा साहब की नज़र से टकराई, बाबा फ़रीद के दिल की दुनिया तब्दील हो गई। ख्वाजा साहब ने मुस्कुरा कर पूछा, क्या ये किताब तुमको नफ़ा देगी? बाबा फ़रीद खड़े हो गए और जवाब दिया, जी नहीं, मुझे इस किताब से नफ़ा नहीं होगा, बल्कि आपकी नज़र फैज़ से नफ़ा होगा। ये कहकर आपने हज़रत ख्वाजा साहब से मुरीद होने की दरख्वास्त की, जिसे ख्वाजा साहब ने कबूल कर लिया और आपको मुरीद कर लिया। बाबा फ़रीद ने ख्वाजा साहब से दरख्वास्त की कि आप अपने साथ मुझे दिल्ली ले चलें, जिसे सुनकर ख्वाजा साहब ने फरमाया कि अभी अपनी तालीम मुकम्मल कर लो, उससे फारिग होने के बाद दिल्ली आ जाना। इस तरह आप ज़ाहिरी तालीम के मुकम्मल होने तक मुल्तान में रहे। तकरीबन तमाम सिलासिल में ही हसूल इल्म जो है उस पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया गया है, और ये बात हमें सूफ़ी लिटरेचर में और तस्करों में भी मिलती है कि जाहिल बेइल्म सूफ़ी जो है ना, वो तसव्वुफ़ की मौत है। ये वो लोग हैं जो कि तसव्वुफ़ को भी बदनाम करने का बाइस बनते हैं। तो इक्तसाब इल्म जो है वो पहले बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद फिर पहले ज़ाहिरी इल्म और फिर उसके बाद बातनी इल्म। बहुत सारे सूफिया कराम ऐसे हैं जो कि बचपन से ही जो है स्पिरिचुअली इंक्लाइंड थे। वो बैत करने के लिए गए और उनको मुर्शदों ने बैत नहीं किया, उनके कहा कि नहीं, पहले ज़ाहिरी इल्म हासिल करो, उसके बाद जब तुम किसी काबिल हो जाओगे तो फिर बातनी तालीम की तरफ आना। क्योंकि बहुत सारे सूफिया कराम ये समझते थे कि बातनी इल्म से पहले ज़ाहिरी इल्म जो है वो प्री रेक्विजिट है। तालीम के बाद आपकी सैर व सयाहत शुरू हुई, जिसके बारे में मुख्तलिफ बयानात मिलते हैं, लेकिन कहा जाता है कि आप इस दौर में गज़नी, बगदाद, सिस्तान, बदख्शां और कंदहार तशरीफ़ ले गए। बगदाद में आपकी मुलाकात शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी से हुई, जिनकी आपने खिदमत की और जिनसे फैज़ पाया। कहा जाता है कि आपकी अकीदत शेख साहब से इतनी थी कि आपने अपने दूसरे बेटे का नाम शहाबुद्दीन रखा। इसके बाद आप मुख्तलिफ़ जगहों पे गए और मुख्तलिफ़ बुज़ुर्गान दीन से आपने फैज़ हासिल किया, और आखिर में आप अपने मुर्शिद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के पास दिल्ली पहुँचे और खरकाए खिलाफत हासिल की। दानिशमंदों सुनो तमामी, अर्ज़ फ़कीर करेंदा। बाबा फ़रीद ने अपनी ज़िंदगी में जो रूहानी रियाज़तें की, कम ही किसी बुज़ुर्ग ने की होंगी। आपकी नमाज और इबादत की पाबंदी आपकी वालदा की तरबियत का नतीजा थी। बाद में ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने आपको चिल्लाए माकूस का हुक्म दिया। चिल्लाए माकूस के हवाले से कई मकामात की निशानदही की जाती है, जिनमें उच्च शरीफ, चावली मशाइख, सेवन शरीफ और मंगो पीर शामिल हैं। आपकी एक चिल्लागाह दिल्ली में भी पाई जाती है, लेकिन रिवायतों में चिल्लाए माकूस के हवाले से सबसे मारूफ जगह उच्च शरीफ है। कर देने
माकूस का जो लफ्ज़ है इसका लिटरल मीनिंग है इन्वर्टेड। चिल्ला माकूस एक ऐसी एक मुजाहिदा या रियाज़त है जिसमें बाबा फ़रीद मुल्तान के करीब एक मस्जिद में एक कुएं के अंदर रस्सी पाँव से बांध के उल्टा जो है वो अपने एक दोस्त को कहते थे जो उनको लटका देता था, और उल्टा लटक के जो है वो सारी रात इबादत करते थे, और फजर के वक्त जो है अजान से पहले वो उनका दोस्त उनको निकाल लेता था। तो ये 40 रोज़ तक उन्होंने उल्टा लटक के एक अंधे कुएं में रात के वक्त जो इबादत की है उसको चिल्ला माकूस कहा जाता है। इश्क दा मेरे जब बाबा फरीद मुर्शिद की खिदमत में रहकर कड़ी से कड़ी रियाजत और इबादत कर चुके तो आपने अपने मुर्शिद से हांसी में क़याम करने की इजाज़त चाही ताकि सबसे अलग होकर अल्लाह की इबादत कर सकें। हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी ने फरमाया, फरीद तुम हांसी जाओगे। बाबा साहब ने अर्ज़ की, जैसा हुक्म हो उसकी तामील करूँगा। हज़रत बख्तियार काकी ने फरमाया कि तुम मेरी वफ़ात के वक्त यहाँ मौजूद ना होगे। हज़रत बख्तियार काकी ने बाबा फरीद को अपनी जानमाज और असा अता फरमाया और कहा कि वो अपना खरका, दस्तार और दीगर तबर्रुकात काजी हमीदुद्दीन नागौरी के पास अमानत रख देंगे। तुम मेरी वफ़ात के 5 रोज़ बाद उनसे ये चीज़ें हासिल कर लेना। मेरी जगह तुम्हारी है। इसके बाद बाबा फरीद हमेशा के लिए अपने मुर्शिद से जुदा हो गए। दिल्ली से चलकर बाबा साहब हांसी आ गए। हांसी में जब आपकी शोहरत हद से ज़्यादा बढ़ गई तो आप एक सुकून की जगह की तलाश में निकले ताकि आप अपनी रूहानी रियाजत जारी रख सकें। इस तरह आप वापस अपने गांव कोतवाल तशरीफ़ ले गए, लेकिन वहाँ पे भी एक हजूम जमा हो गया आपसे मिलने के लिए, और यूं आप अजोधन तशरीफ़ लाए, यानी कि आज का पाक पतन, जहाँ पे आप आखिरी दम तक रहे। उस ज़माने में यहाँ पे दरियाए सतलज पार करने के लिए एक घाट होता था और यहाँ कई सड़कें आ मिलती थीं, लेकिन आपने कस्बे के कुछ फासले पे जंगल के किनारे अपनी जगह मुंतखब की। तनु खालिक ज़ात कदीम कहूं, तनु हादिस खल्क जहान कहूं, तनु मुतलक महज वजूद कहूं, तनु अलमिया आया। बर्रे सगीर में सिलसिला चिश्तिया फैलाने में हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद आप ही का नाम लिया जाता है। तसव्वुफ़ का पैगाम फैलाने के लिए आपके खुलाफा पूरे बर्रे सगीर में फैल गए। जवाहिर फरीदी के मुताबिक आपके खुलाफा की तादाद 50,000 थी, जिनमें हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया, हज़रत अलाउद्दीन साबिर कलियरी और हज़रत जमालुद्दीन हांसवी भी शामिल थे, जिनसे 3 चिश्तिया सिलसिले जारी होते हैं, निज़ामिया, साबरिया और जमालिया। मेरे पीछे आप मखदूम साबिर कलियरी का हुजरा भी देख सकते हैं, जिसके पीछे लंगर खाना है और उसके साथ में कव्वाली चल रही है। मैं यहाँ पे बाबा फ़रीद का एक छोटा सा एक वाक़या कोट कर दूँ। बाबा फ़रीद को किसी शख्स ने कैंची जो है वो तोहफ़तन पेश की, तो बाबा साहब ने फरमाया कि मुझे कैंची ना दो, मुझे सुई ला के दो। कैंची काटती है, तोड़ती है, डिवाइड करती है, सुई जो है वो जोड़ती है और करीब करती है। बाबा फ़रीद गंज शकर के साले विसाल के बारे में इख्तिलाफ पाया जाता है, लेकिन सब मुत्तफ़िक हैं कि आपका विसाल 5 मुहर्रम को हुआ। सुल्तान ग़ियासुद्दीन बलबन ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की ज़ेर निगरानी में आपका मकबरा तामीर किया। आपका उर्स 1 मुहर्रम से लेकर 5 मुहर्रम तक मनाया जाता है, जिसमें हर साल सैकड़ों की तादाद से अकीदतमंद शिरकत करते हैं। निशान